होता है। ये संस्था 72 साल पुरानी संस्था है और मैं मानता हूं कि संविधान में तो भारत इंडिया दोनों है, इसलिए हम इसका हिंदी में तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ही कहते हैं। कल को अगर तय होता है, हमारी सोसाइटी है, हमारी गवर्निंग काउंसिल है, हमारी जनरल बॉडी है, अगर वहां के सदस्य कहते हैं कि इसको बदलना चाहिए तो बदलेंगे। वी आर ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, रिमेंबर। Sir, I'm Mayank from Reuters. I have two questions. So one is, how did the idea initially come up? And generally common knowledge that, I don't know whether we can call it a Western construct, but when people talk about the oldest democracy in the world, generally they associate us with that. Vaishali, many people might not know, even within India, that might be due to a lack of sense of history. What sort of effort do you see, other than this festival, do you see you need to take to kind of, to let people know about the mother of democracy? Well, I think traditionally our historians perhaps didn't give adequate importance to the fact that India is the birthplace of democracy, or rather the mother of democracy. And therefore that historical backlog, in a way, which we are trying to clear through these kinds of initiatives. Because how can we allow ignorance to persist in a country which talks about tamasoma jyotirgamaya? So we have to bring light to those who are ignorant perhaps or not aware. So we need to make them aware. And sir, how did the idea come up? What was the deliberation? Who thought about it? How did the idea come up? I mean, it's a collective team functioning. We all were deliberating. We created that book, as I said, and how to release it. Simply to launch it in some function with some seminar, which is a routine thing. Right. But let us take it to the very place where democratic aspirations were given a concrete shape as a governance system. Right. And that place is Vaishali. Right. So we named it adequately as Vaishali. Sure. Thank you. And myself, Manoj Kumar, Reuters. You have made a very important announcement of this, but unrelated thing about this Afghanistan students, which have gathered here, according to them, like this ICCR, which is giving scholarships every year since 2018 to more than 4,000 students. Foreign students, which are the ambassadors of India, and helps us abroad. So nearly 500 students who have not gathered and got the scholarships for 23-24. So any thought or any, how would you share? I request our DG to shed light on that. I think as we would have perhaps mentioned also in our earlier remarks on this subject, that Afghanistan remains a very, very top priority for the government and for Ministry of External Affairs. Especially the students, as you rightly mentioned, who are here. They are our ambassadors. When they go back and they carry these sentiments and of course the skills that they have acquired here. Now, you know the situation in which this condition emerged, and thereafter ICCR, under the instructions and guidance of NEA and together with NHA, we have been working very hard to address the situation of those students who are here and who are not able to go back after completion of the studies. Now, this has been tackled in many ways, including, if it was possible, in subsequent year to grant them a scholarship for the next year. और मैं आपको बहुत खुशी से बताना चाहूँगा कि हमने इतने समय में बहुत सारे बच्चों की समस्या हमने खत्म कर ली है। अब कुछ लोगों की छोटी समस्याएं हैं, बची हुई हैं, इसको भी हम लोग इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री एंड पार्टनरशिप विद एमएचए हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एज वी हैव मेंशन दैट कोई भी अफगान स्टूडेंट जो है इंडिया में है, उसको उनकी इच्छा के बिना उनको किसी फोर्स के थ्रू उनको वापस नहीं भेजा जा रहा है और नहीं भेजा जाएगा उनको। Sir, my name is Rahman. I represent the UAE newspaper, Etihad, and the First of all, I
I thank you for your very comprehensive statement. Also, sir, now your bilingual skill that you need to go and spoke in Hindi. So I would like to know that you said that a very large number of youngsters, young politicians were brought. Now from the Arab world, were there some young politicians or those, because after the Arab Spring there are a lot of aspirations, particularly in countries, some countries of North Africa as well as in West Asia. So I'm not talking about the opposition, but those who are in power from their side, the leaders, the young leaders, have you invited them or not? I think there were, I don't have the details right now, but There's a few countries, there were a few countries. सर इसमें एक सप्लीमेंट्री अगर आप जोड़ सके तो क्या ये म्यांमार और ये पाकिस्तान जैसे देशों के भी प्रतिनिधि इसमें आए थे? नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी बहुत अछूता सा सर मैं अभिनव हूँ हिंदुस्तान अखबार से। मेरा सवाल इससे इधर है, कल हिंदी दिवस है, तो आईसीसीआर जो विदेशों में हिंदी को लेके काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, या वहाँ विस्तार हिंदी का हो रहा है आप, या फिर पिछले कुछ वर्षों में हिंदी पढ़ने वालों या आपके संस्थान में हिंदी के लिए संख्या घटी है, लोगों की बढ़ी है, किस तरह की जिज्ञासा है? मैं कुछ बताता हूँ, फिर हमारे डीजी भी कुछ जोड़ेंगे इसमें। ऐसा है कि हिंदी समेत भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण विदेश में जो उत्सुक लोग हैं उनको देने का क्रम आईसीसीआर लगातार करती आई है। और हिंदी तो निश्चित रूप में, मगर कहीं जरूरत होने पर बंगाली, कहीं तमिल, कहीं मराठी, इन भाषाओं के भी प्रशिक्षण के वर्ग हम आवश्यकता के अनुसार जो मांग आती है तो उसके अनुसार करते ही रहते हैं। जहां तक हिंदी की बात है, हमारे जो 37 सेंटर्स विदेश में काम करते हैं उसमें अधिकांश केंद्रों में हिंदी या संस्कृत के कुछ न कुछ पाठ्यक्रम चलते हैं, जिसके बारे में हमने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट भी किया है और उन्हीं के पाठ्यक्रम को हम चलाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले चीन में जो हिंदी पढ़ते हैं ऐसे कुछ युवाओं की इच्छा थी कि हिंदी की भूमि जो है उसको हमें जाकर देखने की बहुत तमन्ना है, इच्छा है, तो हमने उनके लिए एक स्पेशल टूर 3 साल पहले ऑर्गेनाइज की थी। और जो उसका अनुभव रहा उसके आधार पर अभी हिंदी के कुछ छात्रों को भी हमने इसी जेनेक्स डेमोक्रेसी जैसा कार्यक्रम करते हुए जो हमारे केंद्रों में या अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनको भारत में बुलाया था और उनके लिए आगरा में जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है या वर्धा में जो हिंदी यूनिवर्सिटी है, इनके साथ बात करके कार्यक्रम किए और वो बड़े प्रसन्न होकर यहाँ से चले गए। जो हिंदी के पाठक हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, उनकी भी एक यात्रा इन्हीं दिनों हुई है और वो भी भारत में आकर हिंदी के बारे में और अधिक अपनी समझदारी को विकसित करते हुए यहाँ से गए। उनके लिए एक स्पेशल पाठ्यक्रम भी वर्धा की यूनिवर्सिटी ने चलाया, तो उसमें वो पूरे सहभागी हुए थे। और भी मैं बता सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं स्वयं या हमारे अधिकारी जाते हैं वहाँ पर हिंदी, संस्कृत या भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को पढ़ाने वालों के साथ हम हमेशा रूबरू होते हैं, उनको मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, कुछ आवश्यकता के अनुसार सहयोग भी करते हैं। जैसे उज्बेकिस्तान में ताशकंद में जो लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय है, उनको कुछ किताबों की जरूरत थी, हमने किताबें यहाँ से छपवाकर उनको भेज दी है जो उनके पाठ्यक्रम का अंग है। साथ ही साथ मॉस्को में कुल मिलाकर पुराने समय से रशिया में हिंदी कई जगह पढ़ाया जाता है, तो मॉस्को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के साथ हमारी जब बातचीत हुई तब उन्होंने 2 टिप्पणियां की, दोनों थोड़ी रोचक हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आप हमारे मतलब भारत के प्रधानमंत्री के प्रति हम बहुत आभारी हैं क्योंकि वो यहाँ मॉस्को में आकर भी हिंदी बोलते हैं, इसके कारण हिंदी रूसी अनुवाद करने वालों को कुछ काम मिलता है, अवसर मिलता है जो पहले रूसी हिंदी वालों को मिलता था। तो हिंदी का प्रयोग विदेश की भूमि पर करने का ये भी एक स्वागत किस पद्धति से होता है इसका एक उदाहरण है। दूसरा उन्होंने कहा, वो हम सबके लिए रोचक है समझने के लिए, उन्होंने कहा कि जो हिंदी हम पढ़ाते हैं वो दुर्भाग्यवश आपके देश में नहीं बोली जाती। तो मैंने चकित होकर उनको पूछा कि ऐसा क्यों कहती है,
तो उन्होंने कहा कि आपके देश के पत्रकार सारी चीजों को महंगाई मानते हैं, हम बताते हैं कि महंगाई अलग है और मुद्रास्फीति अलग है। मगर आज आपके देश के पत्रकार मुद्रास्फीति का शायद मतलब नहीं समझते। ये रूस की 70 वर्षीय एक महिला प्राध्यापिका की टिप्पणी है, जो हमारे लिए एक सोचने के लिए अवसर है। और कुछ जो आप कुछ कह रहे थे हिंदी के बारे में? नहीं, जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया उसमें बस एक भाग को थोड़ा सा विस्तार में करूं, वो है कि हमारा प्रयास ये है कि हर स्तर पर बाहर में हिंदी के प्रचार के लिए हम कार्य करें। तो जैसे कि जो बच्चे हैं, तो स्कूल में और उस स्तर पे जो बच्चों को प्रोत्साहन देना है, उसके लिए ये तय किया है कि जहां जहां पर हिंदी की पढ़ाई होती है, वहां पे अगर जो बच्चे या तो अपनी कक्षा में प्रथम द्वितीय इस तरह के जो स्थान लेके आ रहे हैं, जो हम लोग कई बार जो क्विज करते हैं, कोई हम लोग इस तरह कोई प्रतियोगिताएं करते हैं, उनके जो जीतने वाले लोग हैं, उनको हम लोग साल के अंदर में भारत बुलाएंगे और उनको ये कार्यक्रम एक बार का वन ऑफ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हर साल ये कार्यक्रम होगा, ताकि हर साल के बच्चों को शामिल किया सके। दूसरा, इसके ऊपर का स्तर जो है वो ये है कि जो हमारे पास जो वहां पर बाहर प्राध्यापक हैं, जैसा सर ने बताया अभी, तो उनको भी हमारी जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बाकी सब लोगों को जाकर के हिंदी सीखने का और हिंदी के संपर्क में रहने का मौका मिलता है, लेकिन हम लोगों ने हिंदी भारत सीखी 20 साल पहले, 15 साल पहले। उसके बाद दोबारा हम लोग को ये मौका नहीं मिला दोबारा जाने का। तो इसलिए एक तरह से रिफ्रेशर के लिए उनको भारत से दोबारा वो मिल सकें, अपने कॉन्टैक्ट बना सकें, लोगों से उनका संपर्क स्थापित सके, उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया हम लोगों ने। और ये हर साल जो छुट्टी का समय होता है, ताकि उस समय अध्यापकों को समय मिले, उस समय वो लोग कर सकें, और ये हम लोग कार्यक्रम अब से शुरू कर रहे हैं। और तीसरा ये करेंगे, जो हमारे जो सही में जो एक्सपर्ट्स हैं उस स्तर पे, उनको ये कोशिश करेंगे हम लोग कि उनको हम लोग कोई एक प्रोजेक्ट हो, जिस प्रोजेक्ट में वो उस भाषाओं में हिंदी में अनुवाद हो या कोई कार्य कर सकें, इसके लिए उनको मौका मिल सके। तो इस तरह से हमारा विचार है कि हम लोग हर स्तर पे हम लोग हिंदी का विचार और हिंदी का प्रसार कर पाएंगे। नमस्ते सर, मैं मनोहर की स्त्री हूँ सर, विनय सर दिस साइड, मनोहर की स्त्री, इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्सेस सर। हमने देखा G20 समिट के अंदर, मैं भी वहाँ पर IMC में था, जिस प्रकार से डेमोक्रेसी ऑफ मदर के बारे में जानकारी दी गई और डिजिटल का वहाँ बहुत अच्छा था। तो क्या ICCR डिजिटली लोगों को, खास करके हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर देखें, तो उनके तक अपने कल्चर को पहुंचाने के लिए कोई इनिशिएटिव लेने जा रहा है, या कोई इस तरह की चीजें, या तो फिर SRD को? और दूसरा है सर, जिस प्रकार से अभी वैशाली ऑफ डेमोक्रेसी फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, तो हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट्स के साथ डिनर हो रहा था, तो बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटीज का एक वहां पर तस्वीर भी थी। तो इसे लेकर के अपोजिशन ने सवाल भी खड़े किए थे कि हमारी सरकार या नीतीश कुमार जी जो है सो उसको रिनोवेट किया। तो क्या इस फेस्टिवल में उनको भी इनवाइट किया गया है क्या? बिहार के मुख्यमंत्री, वहाँ के सांसद, विधायक सबको बुलाया है। वो आएंगे या नहीं वो अभी कंफर्मेशन नहीं है, मगर हमारी ओर से बुलाया है। डेमोक्रेसी है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक उसके आकलन के बारे में करने की बात है, ये तो कल्चर मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है। हमारा काम विदेश से संबंधित है और इसलिए इस कार्यक्रम में भी अधिक संख्या में विदेशी छात्र सहभागी होने वाले हैं, ऑडियंस की दृष्टि से। बाकी भी होंगे, मगर विदेशी छात्र बड़ी संख्या। विदेशों में हिंदी को जब तक रोजगार की भाषा के रूप में आगे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा सर, तो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। और इसमें लगता है ICCR की काफी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि आजकल हिंदी बड़ी तेजी से रोजगार की भाषा होती जा रही है। सजेशन फॉर एक्शन। थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद।